जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना गुरु महाराज, में साह चढ़ा होया। गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। कोटम कोट शुकराना गुरु महाराज जी। थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਈ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਖੁਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੈਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਗਈ ਨਾ ਜਦ ਤਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 6-6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਸਕੈਚ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕੈਚ ਪੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆ ਹਾਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਬਟ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕ EMPLOYE ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਟਣਗੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਡਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਪੜਥੂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। क्या दुख, क्या दर्द, क्या चिंजा, क्या चिल्लम चिल्ली, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है गुरु महाराज जी के सामने, क्योंकि मेरे गुरु बड़े ये चीज़ां की मायने रखदी, इन्हां दी औकात ही की है इन्हां चीज़ां दी, ये दुख दर्द वगैरह दी क्या औकात है, कुछ भी नहीं मेरे गुरु जी सामने। मेरे गुरु जी तो महाशिव है, तो मेरी जान है। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरु महाराज जी ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਦੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚੁਕਾਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू, लव यू, लव यू लॉट गुरु महाराज जी। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਰਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। जय गुरु जी। संगत जी सबने बहुत बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी, वह शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मतलब मैं आपसे फेसबुक के माध्यम से 2019 में आपके वीडियोज ये देखती थी और मैं सिर्फ जय शुक्राना गुरु जी लिख दिया करती थी। 2000 मतलब मेरे अंदर 19 से ही बहुत कष्ट आने लग गए थे, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा, मानसिक तनाव, मतलब बहुत हर तरीके से, मतलब बिजनेस में भी बिल्कुल बंद पड़ा था, जहाँ कहीं पैसे डाल रखे थे वहाँ भी घाटा चल रहा था। मतलब 2023 तक हमारा कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन मैं जय शुक्राना लिख दिया करती थी। मैं कभी नहीं लगाती थी दिमाग की कौन से गुरुजी कैसे गुरुजी, बस मुझे उनके वो भजन आते प्रखर डांगरा जो गाते वो सुनती और अच्छा लगता, और ज़्यादा मैं दिमाग लगाती कि कोई शिव का अवतार है क्या है। अभी नवंबर में मैं किसी के साथ वृंदावन गई, तब वो इसके बारे में बताऊंगा, मैं भी देखती हूँ वो वीडियो। फिर उन्होंने मेरे को विस्तार से बताया। तो मेरे लगन तो थी, लेकिन ऐसी लगन नहीं कि मैं डीपली गुरु महाराज के उसमें कभी नहीं गई। तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरा बता रही हूँ कि मैं कैसे जुड़ी। मैं हर बार बताऊंगी ये चीज़। तो मैं नवंबर में वृंदावन गई, वहाँ से आने के बाद मुझे गुरुजी सपने में दर्शन दिए। तो मैंने सोचा कौन दिखे कौन दिखे, तो फिर मुझे याद आया कि अरे तो छतरपुर वाले गुरुजी हैं। 3-4 दिन बाद इस तरह घटना घटी कि मुझे उनका स्वरूप भी ब्लेस हो गया। एक दुकान पे वो चमत्कार ही था, और मैं घर ले आई, उसे कहाँ रखूँ करती रही, और फिर मेरे बेडरूम में एक अलमारी है वहाँ रख दिया। वहाँ से जब भी हटाती हूँ तो मेरे अजीब सी बेचैनी हो जाती है गुरुजी के स्वरूप को, और मेरे को तितली रूप में सब तरीके से दर्शन देते हैं गुरुजी। जैसे जो भी टेलीपैथी के माध्यम से मेरे पास मैसेज आता है वो ही सब कुछ गुरुजी का होता है। पहले से मेरे घर में बहुत शांति हो गई, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्र। और एक हम चाय प्रसादी, ये अब तो मेरे हस्बैंड भी कहेंगे गुरुजी की चाय प्रसादी बनाओ, मतलब सबको याद रहेगी चाय प्रसादी। और मतलब इतना अच्छा माहौल हो गया है हमारे घर का कि जय शुक्राना गुरुजी। जबकि मेरे बच्चे की शादी का बैठ नहीं पा रहा है, तो भी मैं कहती हूँ इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी, अच्छे के लिए नहीं अभी कर पा रहे हैं, उसको लड़कियां पसंद नहीं आ रही है।
तो उसको लड़की गुरुजी पसंद कराएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि हर चीज़ बुरी घटना घटने से पहले गुरुजी हमें संकेत दे देते हैं टेलीपैथी के माध्यम से, यूट्यूब के मैसेज हम सत्संग सुनते हैं उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और वो जो मैसेज डालते हैं तो उसमें कहते हैं कि सत्संग सुनो तो 10% 5% रह जाएगा, और वो कष्ट हमारा उतना ही रह जाता है। अभी भी कुछ ना कुछ संकट कष्ट आते रहते हैं। मेरे सास ससुर दोनों बीमार हैं, और ससुर जी तो मौत के मुंह में से निकल के आए। गुरुजी ने यही कहा था कि तेरी जो बिल्कुल जिसके मौत करीब आ रही है मैं उसको बचा लूँगा, और मेरे ससुर जी को बचाया है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और जहाँ वो रहते हैं वहाँ तो मैं रोज़ रोज़ जा भी नहीं सकती थी, लेकिन गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मैं रोज़ मेरे सास ससुर जी के पास जा पा रही हूँ। मेरे देवर देवरानी वहीं रहते हैं, लेकिन हम सब मिलके उनका देखभाल कर रहे हैं, उनकी हमें सेवा का मौका मिल रहा है। लेकिन ऐसा कष्ट नहीं दे बस भगवान, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उनको कष्ट मिले। और ये भी शुक्राना गुरुजी की बहुत बड़ा कष्ट आया था, लेकिन उन्होंने कहा था तेरे खास परिवार का आदमी बीमार है, मैं उसका कष्ट हल्का कर दूंगा। और उन्होंने उनकी बीमारी जो बहुत बड़ी थी उसको बहुत कम में कर दी। शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरे लिए भी बार बार मैसेज आ रहा था, जय शुक्राना गुरुजी की तेरे शरीर पे ध्यान दे, तो चिंताओं से तेरे शरीर पे ध्यान नहीं दे रही है। आज मैं एक्सरे करवा के आई हूँ मेरी गर्दन में। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। अभी एक सत्संग हुआ जिससे जो मैं संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। जनवरी में मेरी डेंटल प्रोसीजर होना था, और गुरुजी हमारे लिए हर चीज़ का टाइम डिसाइड करते हैं। गुरुजी ने वो पोस्टपोन करा के अभी कराया, और जब मैं अपना डेंटल प्रोसीजर कराने गई तो वो एक टीथ का डेंटल प्रोसीजर था, लेकिन उन्होंने वहाँ बोला कि आपके 2 टीथ सेकेंड एक और टीथ पे भी ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। और जब वो प्रोसीजर हुआ उसके बाद जब मैं घर आई, नॉर्मली ऐसा कुछ पहले होता था तो पूरा दिन बस दर्द रहती थी और पेन किलर्स लेने पड़ते थे। लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हर चीज़ में गुरुजी इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं हमारा। वो दर्द मेरा कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। वो सिर्फ दबाने पे थोड़ा फील होता था। आई वॉज एबल टू ईट एवरीथिंग। उसमें पता ही नहीं चला कि कैसे गुरुजी ने वो प्रोसीजर करा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक गुरु वो हमारे माँ बाप भी हैं। और इतना प्यारा टेलीपैथिक मैसेज गुरुजी ने बाद में भेजा कि जैसे एक माया बाप अपने बच्चों को ऐसे कुछ कष्ट से जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि गुड जॉब। तो एक वैसा टेलीपैथिक मैसेज गुरुजी ने मेरे को दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जब हम गुरु महाराज के सानिध्य में आते हैं तो उनकी जो कृपा हमें मिलती है उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास आने से ही समझ आता है कि गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। और वही मैं फ़ील कर पाई। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे मुझे पकड़ के रखते हैं और गिरने नहीं देते हैं। दैट स्ट्रेंथ, दैट कॉन्फिडेंस टू फेस दैट चैलेंज, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज दे सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग मेरी मम्मा का सत्संग है। मेरी मम्मा ने गुरुजी का स्वरूप लॉकेट स्वरूप डाला था और वो उनका गिर गया। उसके कुछ दिन बाद मम्मा को अपसेट टमी हुआ, बहुत स्टमक के इश्यूज़ हो रहे थे और फीवर भी आया। शी वॉज़ रियली अनवेल।
लेकिन उसके बाद वो ठीक हुई जल प्रसाद लेने से, चंदन तिलक से ही। और मेडिसिन्स तो ली थी, बट गुरुजी का उस दिन मेरे पास मैसेज आया कि तेरी मम्मा की मेडिकल प्रॉब्लम को मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, उनको हेल्थ ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। मुझे नहीं पता कि मम्मा की कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने इस छोटे कष्ट में काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे डैड को भी सेम इशू अभी है, लेकिन ही इज़ बेटर, तो उनके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है। एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न में बहुत ज़्यादा पोलन होता है, और उससे सम पीपल आर एलर्जिक टू पोलन, एंड माई डॉटर इज़ वन ऑफ देम। और उसको नॉर्मली मास्क लगाना पड़ता है। इफ़ शी डजंट वी अ मास्क शी विल बी स्नीजिंग, कॉफिंग, उसकी इची आइज़ होती हैं, रेड आइज़ होती हैं। एंड बट मैं उसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन देती थी, लेकिन वो मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करती थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एंड वन डे शी केम बैक फ्रॉम स्कूल विद रेड आइज़, इची आइज़, शी वॉज कॉफिंग, स्नीजिंग। और उस दिन उस दिन हमें सत्संग पे जाना था। एंड देन वो आते ही बेड पे लेटी और सो गई, और गुरुजी का मैसेज आया था कि सत्संग पे ज़रूर आना। और मैं उसको उठा रही हूँ, लेकिन वो नहीं उठ रही। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मैं इसको उठाता हूँ, तो उन्होंने उसको बोला, तो वो किसी तरह उठ के गई वहाँ पे सत्संग में। और वहाँ पे मैंने देखा 1-2 बच्चे और ज़ुकाम खांसी था उनको, बट गुरुजी ने उनको बुलाया हुआ था और ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया वीकेंड पे कि आज तेरे को एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिससे तेरे को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने फ्रेंड को, उनकी फैमिली को डिनर पे बुलाया, और रात को जब वो आए उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसे पोलन एलर्जीज़ हैं, बट उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जो मुझे नहीं पता थी एलर्जीज़ से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि हर रोज़ ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी है एटलीस्ट फॉर दिस 2 मंथ्स, जब ये पोलन बहुत हाई होता है। उन्होंने और भी चीज़ें बताई, और आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज थिंग्स। और उसके बाद मेरी जो डॉटर में एनर्जी लेवल एकदम लो रहते थे, एकदम वो ठीक हो गए। उसकी इची आइज़, स्नीजिंग, कॉफिंग सब ठीक हो गया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से। एंड आई थैंक गुरु महाराज फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, बिकॉज वो हमारी बातों को, हमारी प्रॉब्लम्स को बिना बोले जानते हैं। उनको पता है कि हम किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उनसे कुछ भी नहीं मांगें, बिकॉज वो सही टाइम आने पे हमें वो दे देते हैं। एंड आई हैव सीन दैट इन माई लाइफ कि गुरु महाराज अपने आप धीरे 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 हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, और कैसे हमें लाइफ में हमारा सब कुछ ही चेंज कर देते हैं। हमारा तो फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया। हमारे कितने सारे लोग गुरुजी ने हमसे दूर कर दिए जो हमारे लिए ठीक नहीं थे। क्या होता है कि हम ऐसी संगति में अगर रहते हैं तो ना चाह के भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे कार्मास के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक दुनिया ऐसी है जहाँ पे गॉसिप्स, ये सब चीज़ें रहती हैं। गुरुजी ने सबसे दूर कर दिया, एंड आई थैंक गुरुजी फॉर दैट। उनको पता है हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हमारी लाइफ से रिलेटेड सारे डिसीजंस गुरुजी लेते हैं, एंड आई थैंक गुरुजी फॉर दैट, बिकॉज पहले बहुत लाइफ को लेके डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में, फ्यूचर को लेके डर लगता था। लेकिन अब विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज साथ में हैं, तो हर चीज़ गुरु महाराज अच्छा ही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। एंड गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, हमें गुरुजी को सिर्फ मानना है। अगर मांगना है तो गुरुजी को गुरुजी से ही मांग लो, बिकॉज़ अगर हम गुरुजी से पैसा मांगें या घर मांगें या कुछ ऐसी चीज़ मांगें तो गुरुजी कहेंगे कि हाँ तुम ये ले लो, उसके बाद बस ख़त्म। लेकिन अगर गुरुजी को गुरुजी से ही मांग लिया तो गुरुजी तो हमेशा साथ में है। तो हर दुख में, हर सुख में, हर जगह गुरुजी हमें उस अपना साथ, अपना एहसास दे के इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग जो होती है वो मिलती है। एंड लाइफ जीना सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताते हैं, हमें कैसा कहाँ बिहेव करना है। ही गाइड्स यू एवरीवेयर। हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो हमें गाइड करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है।
जब हम अपना एडवाइज़र ही गुरुजी को बना लें तो हमें बिल्कुल सही एडवाइस मिलती है। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारी जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मैंने ये चीज़ें नोट की हैं कि मेरे मन में कभी दुविधा होती है कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो गुरुजी तुरंत मुझे बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन से पहली आवाज़ आती है वो मेरी आवाज़ होती है। और इट हैपन्स टू मी ऑल द टाइम कि जब मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, मैं अपने मन से पूछती हूँ तो पहली आवाज़ जो होती है वो गुरुजी की होती है और वो सही होती है। एंड उस चीज़ का भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं एंड वी डोंट हैव टू डू दैट। हमारे परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं और उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हमें बाहर निकालनी होंगी। और इसके लिए भी हमें गुरुजी से ही अरदास करनी होगी, बिकॉज़ एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। लेकिन जब एक गुरु की कृपा होती है तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से बाहर चली जाती हैं और हमें गुरु महाराज, हमारे परमात्मा हमारे अंदर बैठ जाते हैं। जब वो हमारे अंदर होते हैं तो वो हमें बिल्कुल सही गाइड करते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। वो हमें हर डर से, हर मुसीबत से बचाते हैं। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। ये जर्नी गुरु महाराज के साथ इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें उन्होंने मेरी लाइफ को, मेरी नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया है। पहले कभी हमारी जैसे बात होती थी मेरी सिस्टर की, मेरी मदर से, तो हम कई बार किसी की बात कर लेते थे। लेकिन नाउ इट्स सो ब्यूटीफुल कि हमारे पास गुरुजी की बातें होती हैं, गुरुजी के बारे में बात करने को होती है। एंड and I thank Guruji for that, because गुरुजी ने इतने सारे सत्संग दिए जिससे हम सीख सकते हैं लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें गुरुजी सिखाते हैं। एंड आई एम श्योर सारी संगत अगर सत्संग सुनते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और कितने मर्ज़ तो गुरुजी हमारे सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज को जब हमें दर्शन देने होते हैं वो हमें किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि जब राइट टाइम होता है ही ऑलवेज़ कम इन एनी फॉर्म। गुरुजी तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें इस सब से प्यार करना चाहिए, इसलिए बिकॉज़ हर इंसान में गुरु बसता है, हर इंसान में भगवान बसता है और वो किसी भी रूप में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे प्यार करो, बिकॉज़ मैं तो हर किसी में हूँ। गुरुजी एक और चीज़ भी बोलते थे कि हमें अपने घर के काम छोड़ के, जैसे हम कई लोग ऐसा होता है कि घर में तो खाना नहीं बनाया, घर में बच्चों को, हस्बैंड को, मम्मा पापा को या किसी को उनके सेवा नहीं करी और मंदिर चला गया, तो वो मना करते थे। कहते थे कि अपने हस्बैंड की सेवा करना या हस्बैंड को वाइफ की सेवा करना और दोनों को मिलके बच्चों की सेवा करना, अपने जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करना, उसके बाद हमें अगर टाइम है तो मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी सेवा है जो भगवान ने हमें दी है। तो हमें सबसे पहले उसको करना है और उसके बाद हमें अगर टाइम है तो मंदिर जाना है। लेकिन गुरुजी ने एक और चीज़ बोली कि ये सेवा करते करते तुम सिमरन करो, बिकॉज़ भगवान को याद करने के लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो आप कभी भी याद कर सकते हैं। और गुरुजी ने एक और चीज़ बोली कि वहमों में मत पड़ो। आप ये मत सोचो कि आज मैंने जोत जलाई या नहीं जलाई, या मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, मुझे जोत जलानी है या नहीं जलानी है। देर इज़ नो रूल फॉर दैट। अगर एक मंदिर में एक माता रानी भी विराजमान है और गुरुजी ने ये बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आपके पीरियड्स भी आए हुए हैं, आप मंदिर आ सकते हो, आप जोत जला सकते हो, आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमें भगवान से दूर करती हैं, बिकॉज़ हम इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं और भगवान को प्यार नहीं करते हैं।
द ओनली थिंग, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान जहाँ रहते हैं उनके पास इतना कुछ है, हम उनको कुछ दे ही नहीं सकते हैं। द ओनली थिंग वी कैन गिव इज़ द लव। उनको सिर्फ प्यार करो और उन पे विश्वास रखो, और ये सब वहमों से निकलो कि हमें पीरियड्स में ये नहीं करना है, हमें अगर हमने उनको भोग नहीं लगाया तो ये हो जाएगा। अगर हमारे घर में गुरबानी चल रही है और खाना बन रहा है तो सारा खाना ही ब्लेस हो रहा है। अगर हमारे मन में सिमरन चल रहा है तो हमारा मन ही मंदिर है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, सिमरन करना है, और बाकी जो सेवा गुरुजी देते हैं वो करवाते भी खुद ही हैं, और वो करनी है। दैट्स इट, दैट्स लाइफ। एंड इतनी सिंप्लिसिटी से गुरुजी ने हमें जीना सिखाया, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बहुत 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 लाइफ ब्यूटीफुल है, उसको जीनी है। गुरुजी कहते थे कि हर मोमेंट को एंजॉय करो लाइफ के। उनको बहुत अच्छा लगता था जब इंजॉयमेंट होती थी, तो गुरुजी कहते थे सेलिब्रेट करो चीज़ों को अपनी, बट भगवान को मत भूलो। ऐसा नहीं है कि आप भूल के उनको अपने साथ लेके चलो, चाहे आप कुछ भी करो। अगर आप भगवान को अपने साथ लेके जाते हो तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको वो ठीक ठाक वापस घर पे लेके आएँ। सो हर जगह उनको लेके जाओ, अपने साथ भगवान को, गुरुजी को रखो, क्योंकि हमारे गुरु भगवान ही हैं, महाशिव हैं वो। और जब वो साथ हैं तो लाइफ में कोई भी मुश्किल आसान है, और उनके सहारे ये ज़िंदगी काटनी बहुत इजी है। अदरवाइज़ ये लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट है, हमें उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है रिचुअल्स में पढ़ के। वी जस्ट हैव टू मेक लाइफ सिंपल बाय जस्ट लविंग आवर गॉड, जो बहुत हमारे प्यारे भगवान जी हैं, जो बहुत प्यारे हमारे गुरु हैं, जो हर पल हमेशा हमें ब्लेस ही करते हैं। हमें समझ नहीं आता, कई बार हमें लगता है कि वो हमसे बात नहीं करे, लेकिन वो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, और हमें उनका हर पल शुक्राना करना है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को आज के लिए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से गुरुजी का शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ करें, और आप सब भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मैं बहुत समय बाद गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस की। मेरा हाइपर थायराइड जो गुरुजी ने पहले तो डिटेक्ट कराया और फिर उसका इलाज करवा दिया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे इतनी यात्राएं ब्लेस की, धार्मिक यात्राएं, जो मैं सिर्फ सोचती रहती थी कि मैं कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं, क्योंकि मेरे पति अंकल को बिल्कुल शौक नहीं था मुझे घुमाने का या कहीं ले जाने का, इसलिए मैं नहीं जा पाई कहीं। लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी ने मुझे इतना घुमा दिया। सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे वैष्णो देवी घुमाया, फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे प्रयागराज, उज्जैन, बरसाना, वृंदावन, चित्रकूट धाम, नीम करोली बाबा उत्तराखंड,
फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे केरला घुमाया। केरला में मुझे गुरुजी ने मीनाक्षी टेम्पल, कन्याकुमारी, पद्मनाभम मंदिर और रामेश्वर धाम के दर्शन करवाए, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और इतना अचानक से मेरा ये प्रोग्राम बना था, सब गुरुजी की मर्जी से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी सारी धार्मिक यात्राएं करवाने का। फिर गुरुजी ने मुझे कश्मीर घुमाया। कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं आने दी, हमें खूब घुमाया और सेफली घर लेके आए। वहाँ हमें बर्फ का आनंद दिलवाया, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कश्मीर जाऊंगी और स्लेज पे मैं सवारी करूंगी। मेरे को गुरुजी ने, क्योंकि मेरे पाँव में दिक्कत है, फिर भी गुरुजी ने मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज हम सेफली वापस आए। अभी हाल फिलहाल में कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मार डाला, और उसी स्थान पर हम 1 महीना पहले गए थे। हमें वो सारा सीन हमारी आंखों के सामने घूम रहा है और हमें बहुत दुख हो रहा है कि वहाँ निर्दोष लोगों की हत्या हुई। गुरुजी उनकी आत्मा को शांति दें और उनके घर वालों को इस दुखद हादसे को सहने की शक्ति दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बैसाखी पे बड़े मंदिर बुलाया, बहुत अच्छे दर्शन करवाए। वहाँ मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए गुरुजी ने, और खूब अच्छा लंगर प्रसाद दिया, कुल्फी प्रसाद दिया, कॉफ़ी प्रसाद, सब कुछ मिला और बहुत आराम से हम घर वापस आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जोत में तो रोज ही दर्शन देते हैं हमें। गुरुजी ने मेरी परिवार को भी ब्लेस किया, सबको हेल्थ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार की तरफ से गुरुजी को शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को बस मानो, मांगो मत। गुरुजी अपने आप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बस गुरुजी के वचनों पे चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की निंदा चुगली मत करो। गुरुजी का मंत्र जाप करो। जब भी घर में कोई अप्रिय घटना घटे या कोई कलेश हो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। गुरुजी सब संभाल लेते हैं और सारे काम आपके अपने आप धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। ये किस्मत से ही हमारी किस्मत है जो हमें गुरुजी मिले। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, बहुत कृपा है गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई है, ऐसे ही सबको, सबका कल्याण करना गुरुजी। सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबके घर में सुख शांति दो, सबके ब्लैक मैजिक दूर करो, सबके बच्चों को लंबी आयु दो, सबके घर में खुशहाली दो, सबकी बेटियां सुखी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज फिर गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंगलवार के दिन और 22 अप्रैल 7:21 हो रहे हैं सुबह का, और मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठकर शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैंने मतलब जोत भी अभी जल रही है गुरुपा के आगे, और गुरुपा जो मतलब बुलवाना चाहते हैं अपनी बेटी से, गुरुपा वही बुलवाइए आप, क्योंकि गुरुपा मेरे महाशिव के तो मेरे जीवन में इतने चमत्कार है, इतनी कृपा है, मैं मतलब जिसका शुक्राना कर ही नहीं सकती। पूरी ज़िंदगी बीत जाए तो भी मैं गुरुपा का शुक्राना मतलब नहीं कर सकती। इतने शुक्राना है मेरे गुरुपा के। गुरुपा ने मतलब इस बेटी को और अपने मतलब मेरे दोनों बच्चों को, हस्बैंड को, हम चारों को तो गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किए ही हैं। और हाँ, एक बार नहीं संगत जी, कई बार गुरुपा ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं। और अभी भी गुरुपा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। बच्चों के भी हर पल अंग संग रहते हैं, मेरे भी हर पल अंग संग रहते हैं, हस्बैंड के भी हर पल गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग मतलब गुरुपा के लिए बहुत ही बड़ा है सत्संग, ये कि गुरुपा अपने मतलब हाथ थामने के बाद अगर आप गुरुपा पर अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं गुरुपा के प्रति, तो गुरुपा अपने बच्चों के लिए, अपने संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुपा बहुत दयालु है और बहुत ही मतलब प्यारे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं हमसे संगत जी, इतना कोई भी नहीं कर सकता। मेरे सत्संग में आज यही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे तो मतलब जोड़े जुलाई 2024 में, और तब से लेकर आज तक गुरुपा के अनगिनत ब्लेसिंग्स है जो मैं बता नहीं सकती। और ये सांसें ही हम चारों के मतलब दोनों बच्चों जो गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा ने ही मुझे ब्लेस किए हैं। तो दोनों बच्चे, हस्बैंड और मेरे मतलब हमारी सांसें ही गुरुपा की दी गई है। नहीं तो जो गहरी मतलब जो भारी ब्लैक मैजिक की गई थी मारण क्रिया, उसमें हमारे पूरे परिवार को मतलब वो लोग मार कर हमारा पूरा परिवार को ही नष्ट करना चाहते थे। गुरुपा पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। और अभी भी संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स भरे मतलब मैसेज भी आ रहे हैं। और ये भी आ रहा था कि बेटा तेरे मतलब ऊपर तेरे परिवार के ऊपर काल मंडरा रहा है, तेरे परिवार में मतलब पति को जान का खतरा है, बेटे को खतरा है, तुझे मतलब काल का साया मंडरा रहा है, अकाल मृत्यु का संकट है। ये सब आ रहा था तो मुझे ये सब देख के बहुत डर लगता है संगत जी, क्योंकि एक मन में घबराहट तो होती है। गुरुपा हमारे साथ है, वो हिम्मत हमारे साथ पल पल है, लेकिन फिर भी संगत जी जो शादी के आज 16-17 साल हो गए, इतने दिन से वो भारी ब्लैक मैजिक झेल रही है, मारण क्रिया अपने ऊपर पल पल होते हुए प्रहार को सह रही है। तो मतलब उसके लिए तो ये सब मैसेज मतलब तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मैंने तो मतलब आपने मुझे चुना है, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी मेरे महाशिव, मैंने तो मतलब हमेशा भोले बाबा के रूप में ही आपको जाना है।
तो आप ही देखिए, मैंने अपना सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये बच्चे, हस्बैंड, परिवार, मेरा घर, मेरा जीवन, सब कुछ आप ही के मतलब आप ही के हाथों में मैंने समर्पण कर दिया है। आप जैसे चलाइए। तो गुरुपा मतलब संगत जी काल से भी जैसे बचा रहे हैं हमें, और मैं इसका कितना शुक्राना करूं। सच में संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने गुरुपा का, क्योंकि संगत जी मतलब मुझे ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दी गई थी, और मतलब जो अभी भी करते हैं वो लोग कुछ ना कुछ। तो गुरुपा बोलते हैं बेटा तू बीमार नहीं है, तुझे बीमार किया जा रहा है। और बहुत सारे उपाय बताए हैं गुरुपा, जैसे मतलब अर्जुन के छाल का काढ़ा पीना है, उसके बाद मतलब सुबह वॉक करना है, आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करना है। तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं संगत जी, तो मैं उनको मतलब 6:30 बजे वैन आती है हमारे फ्लैट के नीचे, तो हम उन्हें वैन में चढ़ा के उसके बाद बाहर तो जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा और कोई नहीं है घर में, हम लोग तो घर का भी सारा ये रहता है काम। तो हम लोग का फ्लैट है तो छत में ही बहुत बड़ा है, तो वही मैं वॉक के लिए बच्चों को वैन में चढ़ा के चली जाती हूँ, और सोचती हूँ कि आधा घंटा वॉक करके आऊँगी, उसके बाद फिर अपना सारा काम करूँगी। तो मैं छत पे जा रही हूँ। अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, कुछ दिन से नहीं संगत जी, हो गया कुछ महीने से, जैसे बड़े बड़े चील, मतलब बहुत विशाल चील जो मैंने इतने साल यहाँ पर मतलब हो गए से लेकिन कभी नहीं देखे थे, वो मेरे कभी सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं, कभी सामने जो फ्लैट है हम लोग के वहाँ छत पे आकर मतलब बैठ जा रहे हैं मेरी तरफ मुंह करके, और बहुत ही भयानक आवाज़ निकाल रहे हैं। और मेरे थोड़ा रोम भी मतलब रोम में जैसे शहर जाते हैं वैसा लगता था। और मैं वॉकिंग करती रहती थी गुरुपा का नाम लेके। फिर संगत जी, गुरु जी महाराज कितने रूप में आकर मतलब मेरे हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। तो वो जैसे एक पैरट के रूप में आए, बड़े पैरट के रूप में, और आके और उनको भगा के ले गए संगत जी। मैं देखते ही रह गई। मैं वॉकिंग कर रही हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए मन में कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि उस चील या बाज जो भी था उसको मेरे गुरुपा पैरट के रूप में आके उनको वो आवाज़ करके चिल्ला के जैसे उड़ा उनके साथ बहुत दूर तक चले गए लेके गुरुपा। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार मेरे साथ होता है। तो यही मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता संगत जी। जब महाकाल का हाथ है हमारे ऊपर तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने होते हैं, और गुरुपा के बताए हुए रास्ते पर चलना होता है। तो बस उन पर मतलब पूर्ण समर्पण कर दीजिए, फिर आपको काल से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं खुद अपने आँखों से मैंने देखा है, और इस तरह कई बार हुआ संगत जी। और आसपास में और भी बहुत सारे मतलब फ्लैट है, तो वहाँ भी कुछ मतलब छत में मैंने आंटी लोग जैसे मतलब है अगर 1-2 छत में, तो वो लोग भी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो लोग को समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि गुरुपा मेरे महाशिव मेरे प्राणों की हमारी रक्षा के लिए काल को भी मतलब भगा रहे हैं। तो इनके लिए मैं आप भी बोलिए संगत जी, और क्या मैं शुक्राना करूं मेरे प्यारे गुरुपा का। जब और गुरुपा बोलते ही हैं कि बेटा तू मतलब थोड़ी बातों पर तू परेशान हो जाती है, रोती है, लेकिन तू बोलती है गुरुपा आप मेरी नहीं सुनते, लेकिन तू सुन कि मारण क्रिया करके उन लोगों ने तेरे तन को, मन को, तेरी आत्मा तक को मारने की कोशिश की, और अब वो लोग तेरी सांसें भी तुझसे छीन लेते। मैं तुझे काल के मुंह से खींच कर लाता हूँ। तो
इसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुपा, उतना ही कम है। मैं बोलती मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा बोलते हैं बेटा मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तू मेरी बहुत प्यारी और भोली बेटी है, तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलती जा, तेरा जीवन भी बहुत बड़ा सत्संग है तो और तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, तेरे और तेरे परिवार का मैं हर पल रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुपा इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारे लिए आपको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं गुरुपा, इसके लिए क्षमा कर दीजिए इस बेटे को गुरुपा। और यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि इतनी कृपा कीजिएगा गुरुपा कि आपने जो कुछ मुझे ब्लेस किए हैं गुरुपा उन सबको मैं संभाल सकूं, इतनी शक्ति दीजिएगा गुरुपा। और मेरे सुहाग की, मेरे बच्चों की आप हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। हमारा सब कुछ आप ही है गुरुपा, हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ, मेरे सब कुछ आप ही है गुरुपा। इस संसार में जब लोग इतना कुछ स्वार्थ के लिए, मैं उतना नहीं बताना चाहती हूँ कि अपने होकर भी इतने गिर जाते हैं जो इस तरह से किसी के घर जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। और मेरे महाशिव हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि हम किन किन खतरों के बीच रहते हैं, किन किन संकटों से गुरुपा, किन किन बीमारियों से, किन किन कष्टों से हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। तो उन सब के लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, सांस सांस से शुक्राना गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा, बहुत, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत कष्ट लेते हैं अपने ऊपर गुरुपा, इसलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये आपकी बेटी की बेनती है आपसे गुरुपा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सारे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा गुरुपा। और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा गुरुपा। जय शंकर जी, अब जय गुरु जी। अब मैं अपने आज के शुक्राना को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, लव यू गुरु जी। इसी शुक्राना धन्यवाद। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।